The wait is over and the result for UPSC Prelims 2025 is out. And now, very importantly, we have to approach towards mains 2025. Now, of course, there are some of us watching the video जिनका pre नहीं clear हुआ है, and of course, there are some people who have made it to the mains. So, congratulations to those people who have made it to the mains. Irrespective, whosoever is watching the video, cleared or not cleared, I am going to discuss in this video a very comprehensive timetable. Timetables which you can follow, which you can approach for the upcoming mains 2025. So, अगर आप में से कुछ बच्चों का नहीं भी clear हुआ है, there is no harm in following a timetable. It will only keep yourself aligned with the preparation, and it will also make sure that you are very focused and disciplined in terms of your efforts as well. So in this video, I will be talking about this planner, and this planner is also available. आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे आपको इस प्लानर का, इस टाइम टेबल का PDF मिल जाएगा. Also, please do a thing that please join this Telegram group by the name of Sleepy Classes Mains Pro. Sleepy Classes Mains Pro, that is one Telegram channel. The other Telegram channel, of course, is Sleepy Classes. You will also get the planner in these two Telegram groups, also in the description box. Let me quickly begin. Now, so let's say the GS paper 1 and 2. So for example, you have certain themes and certain subjects like post-independence, world history, modern history, art and culture, geography, polity. Then you have governance and schemes in the GS2 paper. You have IR, you have society and social justice. हमने accordingly days allocate करे हैं, that keeping in mind the importance and the significance of that particular theme and subject in the GS paper. Now, for example, art and culture, one day is sufficient to go through art and culture. Maybe revise the PYQs, go through your content, whatever notes you have made. So it's not that कि आपने पूरा हफ्ता art and culture पढ़ना है. Similarly, modern history, 2 days. Post-independence and world history, 2 days. For example, geography की weightage थोड़ी ज्यादा होती है GS1 में, तो वहां पे हमने 5 days रखा हुआ है. राइट, सो ज्योग्राफी के ऊपर 5 दिन लगाना इज बेटर देन कि आप 5 दिन आर्ट एंड कल्चर पे लगा रहे हैं. सो इन टोटालिटी यहां पे अगर हम हिस्ट्री में देखें, पोस्ट, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर में मिला के इसमें लगभग 5 दिन बनते हैं टोटालिटी में. 5 दिन ज्योग्राफी में भी बनते हैं. नाउ अब ये जो डेज एलोकेट करे हैं, इन दिनों में करना क्या है, एंड दिस इज कीपिंग इन माइंड कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप कंप्लीट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप कहीं से कोचिंग नहीं ले रहे हैं, या मे बी आप सेल्फ स्टडी के साथ साथ कहीं से टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं. तो कीपिंग दैट इन माइंड, please make sure that your content, your consolidated crisp content is there ready in front of you. You're revising your content. You're also going through the PYQs. Of course, Sleepy Classes YouTube channel पे हम free में PYQ series भी चला रहे हैं. 2024 को already हम डाल चुके हैं, 2023 का आने वाला है, and subsequently हमारा target है कि हम till 2013 हम जितने भी PYQs हैं GS1, GS2, GS3 and GS4 के, वो आपके साथ डिस्कस करें. बट ये जो प्लानर है, ये आपको गाइड करेगा कि आपने कितने दिन एलोकेट करने हैं पर सब्जेक्ट. ना पॉलिटी के लिए 4 दिन, गवर्नेंस एंड स्कीम्स के लिए 5 दिन. सो इन कंबाइंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपका 9 दिन लेगा. देन आईआर के लिए अगेन 4 डेज. आईआर में देखो 4 क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं, एंड आईआर मेंस की अगर हम बात करें तो काफी होलिस्टिकली पढ़ना पड़ता है. सो लेट्स डू जस्टिस कि हम 4 दिन आईआर को दें. ऑफ कोर्स सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के लिए भी हम 3 दिन देंगे. तो टोटल जीएस पेपर 1 एंड 2 में जितने भी थीम्स और टॉपिक्स कंबाइंड हैं, उसको हमने 26 डेज देने हैं. 26. देन जीएस पेपर 3 एंड 4 की बात करते हैं. इकोनॉमी के लिए 6 दिन, एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 3 दिन, साइंस एंड टेक के लिए 2 दिन, इंटरनल सिक्योरिटी अगेन 4 डेज. इंटरनल सिक्योरिटी के 4 क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं GS3 के पेपर में. देन एथिक्स एंड केस स्टडीज, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा 12 डेज का. कोर एथिक्स जो थ्योरीज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, 6 दिन उनको, कुछ उसमें थिंकर्स आ जाते हैं. केस स्टडीज को भी हमने 6 दिन देने हैं. तो कंबाइंड GS3 एंड GS4 भी आपके 27 डेज लेगा. तो 27 + 26 आपका बनता है 53 डेज. 53 डेज for GS1, 2, 3 and 4. Understand one thing, ये फाउंडेशन की बात नहीं हो रही है, यहां पे रिवीजन की बात हो रही है. यहां पे आपके कोर कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने की बात हो रही है. इस टाइम पे आपने अपने कंसोलिडेटेड नोट्स बनाने हैं, या अगर नोट्स बने हुए हैं तो उनको रिवाइज करना है. ठीक है, तो 53 डेज अक्रॉस ऑल द 4 GS पेपर. एंड ऑप्शनल, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट, ऑप्शनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 500 मार्क्स का आपको ऑप्शनल रहता है
आपको 50 डेज का जो टाइम पीरियड है अपने ऑप्शनल को भी देना है। नाउ अब ऐसा नहीं है कि आपने पहले 50 दिन जीएस को दिए देन बाद में बाकी 50 दिन ऑप्शनल को दिए, बिकॉज तब तक तो आपका पेपर ही आ जाएगा। आपको ये सारा का सारा बहुत सिस्टमैटिकली मैनेज करना है, दैट विद इन द टाइम ड्यूरेशन के आप जीएस पढ़ रहे हैं, देन लेट्स से एक दिन में अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो 8 घंटे में से अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली मैं 4 घंटे जीएस पढ़ रहा हूं, देन आई आल्सो हैव टू गिव सम टाइम टू माय ऑप्शनल एज वेल। इट्स नॉट दैट कि पहले 50 दिन मैंने सिर्फ जीएस किया, देन बाद के 50 दिन में मैंने अपना ऑप्शनल किया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमने एक टाइम टेबल बनाया है, बहुत डेडिकेटेड टाइम टेबल बनाया है, होलिस्टिक टाइम टेबल बनाया है, अभी आपको दिखाता हूं मैं। देन रिवीजन एंड सेक्शनल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हमने डेज एलोकेट, यहां पे हमने नंबर ऑफ टेस्ट एलोकेट करे हुए हैं। जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी में आपको कम से कम एक टेस्ट देना है, एथिक्स थ्योरी में एक टेस्ट देना है, एथिक्स केस स्टडीज में एक टेस्ट देना है। तो मतलब ब्रॉडली जितने भी यहां पे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं सब में आपने कम से कम एक एक टेस्ट देना है। रिवीजन के बाद आपने एक एक सेक्शनल टेस्ट जरूर देना है। ऑप्शनल पेपर 1 और 2 अगेन यहां पे भी आपने 4 सेक्शनल टेस्ट देने हैं, जिसको हम HLTs कहते हैं। So you have HLTs and you have FLTs. Then FLTs की बात हम करें, एसए में आपने कम से कम 4 FLTs देने हैं। So अगर मैं अपने क्रैश कोर्स की बात करूं, एसए के क्रैश कोर्स में हम 2+3 2 योर हाफ लेंथ टेस्ट एंड 3 फुल लेंथ टेस्ट, हम 5 टेस्ट रखते हैं। बट अगर आप किसी क्रैश कोर्स में नहीं भी ज्वाइंट हैं, या लेट्स से आप किसी और कोचिंग सेंटर के क्रैश कोर्स में ज्वाइंट है, प्लीज इंश्योर कि आपने कम से कम 4 FLTs एसए के लिखे हैं, व्हिच मींस कि आपने कम से कम 8 एसेज लिखे हैं। बिकॉज एक FLT में आप 2 ऐसे लिखेंगे तो 4 में आप 8 लिखेंगे। देन GS1, GS2, GS3, GS4 अगेन यहां पे हमने 2 ईच हमने FLTs देने हैं। ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2 अगेन इन दोनों में हमने 2 ईच FLTs देने हैं। ये बेयर मिनिमम है। तो यू सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट ओनली कि अगर मेंस देना है तो बस हमारे हाथ में जो भी क्वेश्चन आए वो सॉल्व करते रहो। हमको टारगेटेड तरीके से हमने टेस्ट देने हैं, आंसर राइटिंग करनी है, और हमने अपने आप को इतना एग्जॉस्ट नहीं करना है बिफोर द फाइनल डे कि हम वहां पे इतना एग्जॉस्टेड फील करें कि हम अपना बेटर परफॉर्म ना कर पाए। हम वहां पे हमारे पास कंटेंट ही ना हो, इतना एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इतना सैचुरेशन आ चुका है कि 22 अगस्त के बाद हम इतना बेहतरीन कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। सो प्लीज बी केयरफुल ऑफ दैट। नाउ हियर इज अ शेड्यूल फॉर यू। Now this schedule which we have made is also in alignment with the mains crash course, जो कि पेड क्रैश कोर्स है, स्लीपी क्लासेस का बहुत पॉपुलर पेड क्रैश कोर्स है हमारा। तो ये स्केड्यूल उसके साथ अलाइनमेंट पे बनाया क्या है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 जून से ऑलरेडी इंटरनल सिक्योरिटी का जैसे हमने क्रैश कोर्स शुरू कर दिया था। नाउ फॉर एग्जांपल यहां पे डे वाइज बताया गया है कि 4 जून को आपने इंटरनल सिक्योरिटी भी पढ़ना है, साथ में ऑप्शनल भी पढ़ना है। ठीक है, 8:30 to 10:30 AM आपने ऑप्शनल को टाइम देना है। देन सिमिलरली 10:30 to 11 AM हाफ एन आवर का आपने ब्रेक लेना है। यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट, योर कप ऑफ टी, योर कप ऑफ कॉफी। देन 11 to 12:30 PM अगेन 1.5 आवर आपने ऑप्शनल को टाइम देना है। देन अगेन यहां पे 12:30 PM to 2 PM 1.5 आवर्स का यहां पे आपका ब्रेक आ जाता है। लंच ले सकते हो, नाप ले सकते हो, मे बी अगर आपने कहीं एक्सरसाइज करने जाना है, योगा पे जाना है, अगर आप कहीं जिम जाते हैं, सो यू कैन यूटिलाइज दिस ब्रेक पीरियड एज वेल। देन 2 PM to 5 PM 3 आवर्स में आपने इंटरनल सिक्योरिटी देने हैं, 3 घंटे आपने इंटरनल सिक्योरिटी के सब्जेक्ट को देने हैं। देन 5 to 6 अगेन 1 घंटे का ब्रेक है आपका। देन 6 to 9 अगेन आपने 3 आवर्स इंटरनल सिक्योरिटी को देने हैं। देन 9 to 10 अगेन आपका ब्रेक है। तो ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक्स बीच में लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है। बिकॉज इतना ज्यादा अगर हम माइंड के ऊपर लोड डालेंगे तो इतना हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और हमारा माइंड भी लिमिटेड चीजें ही रिटेन कर सकता है। तो ब्रेक्स देना बहुत जरूरी है। एंड देन 10 to 11 PM आपकी लास्ट शिफ्ट होगी, जहां पे आपने रिवाइज करना है जो आपने इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ा है। तो इसी प्रकार अगर आप 3-3 घंटे की शिफ्ट में इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं और 3-4 घंटे की शिफ्ट में ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, तभी आप अपना सिलेबस जल्दी खत्म कर पाएंगे। और माइंड यू, इंटरनल सिक्योरिटी को हमने सिर्फ 4 दिन दिए हैं, एंड देन उसके बाद एथिक्स शुरू हो जाता है। देन उसके बाद आपका सोसाइटी एंड सोशल स्कीम्स वाला जो टॉपिक है वो शुरू हो जाता है, एंड सो ऑन। तो ये होलिस्टिक टाइम टेबल को प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा, बिकॉज मेरे पास इतनी क्वेरीज आती हैं, इतने बच्चे पूछते हैं कि सर हमको एक टाइम टेबल बताओ, हमको एक प्लानर बताओ। टाइम टेबल पता है क्या मदद करता है? टाइम टेबल ना आपको आपकी बाउंड्रीज में रखता है कि हम कितना अपनी बाउंड्री से एक्सटेंड कर सकते हैं और कितना हमको अपने दायरे के भीतर रहना है। और हमको ना एक तरह से एक नेविगेशन, एक जीपीएस की तरह गाइड करता है कि आज के दिन पे मेरा टास्क क्या है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, टाइम टेबल की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज अदरवाइज बिना टाइम टेबल के
हम अपनी मर्जी का कुछ भी करते रहेंगे। मतलब आज आपने अगर पॉलिटी उठा लिया तो कल आप हिस्ट्री उठा रहे हो, देन परसों आप ज्योग्राफी उठा रहे हो। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने 4 दिन दिए हैं, अगर आपने 4 दिन ईयरमार्क करे हैं पॉलिटी के लिए, तो पहले पॉलिटी खत्म करते हैं, देन बाद में दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं। सिमिलरली हमने ये इंश्योर करना है पूरे टाइम टेबल में आप ये देखेंगे कि चीज अलाइंड है कि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका जो एलोकेशन है 3.5 to 4 आवर्स का, दैट इज देयर एवरी डे। ऑलराइट, सो ऑप्शनल इज समथिंग जो कि आपने डेली पढ़ना है। आपका जीएस का सब्जेक्ट 4-5 दिन के बाद चेंज होगा, लेकिन ऑप्शनल आपका डेली जाएगा। ऑलराइट, एंड देन लेट्स टॉक अबाउट अगर हम अगस्त में आते हैं, सो अगस्त में 5th अगस्त के बाद, सो 5th 6th 7th 8th एंड 9th अगस्त, तो यहां पे आपके पास 3-4 दिन का टाइम हमने दिया है जहां पे आप वैल्यू एडिशन करेंगे। वैल्यू एडिशन में आपके करंट अफेयर्स आ जाते हैं, करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन आ जाती है, मंथली मैगजीन्स आ जाती है, जहां पे आप कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्डर ऑफ द करंट अफेयर्स अपने कंटेंट में डालेंगे और अपने रिविजन गैप्स को आप फिल इन करेंगे बाय राइटिंग सम टेस्ट्स। ऑलराइट, यहां पे दिए गए हैं कि कब आपने एफएलटी देना है, कब आपने एफएलटी जीएस1 का, जीएस2 का। देखो मिनिमम 2 एफएलटीज तो आपने हर एक सब्जेक्ट, आपने हर एक पेपर के देने हैं। सेक्शनल टेस्ट अलग से हैं, सेक्शनल टेस्ट 2 ईच है। एफएलटी एटलीस्ट आपने कोशिश करना है कि जीएस1 का मैंने 2 बार एफएलटी दिया है, जीएस2 का मैंने 2 बार एफएलटी दिया है। विद इन जीएस1 सर मैंने हिस्ट्री का भी 2 बार सेक्शनल टेस्ट दिया है, ज्योग्राफी का भी 2 बार सेक्शनल टेस्ट दिया है। सो understand one thing, that answer writing, exposing yourself to the answer writing will not only help you in terms of timing of your answers, but will also help you in terms of having more leverage and having more capacity to fill in more value and valuable content in your answers. So please understand one thing, जो आपको feedback मिलता है, जो आप मॉडल आंसर्स पढ़ते हैं, देन बाद में जाके आप अपने आंसर्स को फिर से चेक करते हैं और देखते हैं कि कहां पे गैप्स आए हैं, वो आपको बहुत मदद करते हैं, जो कि आपके रिविजन गैप्स को फिल इन करते हैं। ऑलराइट, सो प्लीज गाइज, ये टाइम टेबल को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली बनाया गया है। प्लीज डू गो थ्रू दिस। हमारी टीम ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली इस टाइम टेबल को बनाया है, कीपिंग इन माइंड दैट बच्चों को हमने कम से कम दिन में 2-3 घंटे का ब्रेक भी देना है। तो माइंड आपका एटलीस्ट ये नहीं है कि हम बस सुबह बैठे हैं तो बस दोपहर तक या शाम तक पढ़ते रहेंगे, हमने बीच में ब्रेक्स भी लेनी है। और अगर आप एसए के क्रैश कोर्स की तलाश में हैं, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है, तो हमारा एसए का क्रैश कोर्स भी शुरू हो चुका है। आपको यही बताना चाहता हूं, अगर एसए के क्रैश कोर्स में एनरोल होना चाहते हो, प्लीज कॉल ऑन दिस टोल फ्री नंबर एंड गेट इन मोर इनसाइट्स। इफ यू वांट कि मैं एसए रिलेटेड भी कुछ डिटेल्ड वीडियोस बनाऊं, स्ट्रैटेजी वीडियोस, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई विल सी यू वेरी सून वंस अगेन। थैंक यू।